Okay, so if everything is clear, then I'll just show 10 seconds and then we'll move forward. 15 सेकंड का देखते हैं. हर 15 सेकंड में एक कैंडल बंद होगा. 3, 2, 1, stop. Opening. This is the low. Currently it is making a high. आपको दिख रहा है ऊपर टेल क्यों नहीं है? वो टेल क्यों नहीं था? बिकॉज अगर आपका हाईएस्ट प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम है तो ऊपर टेल नहीं दिखता है. देखो 15 सेकंड खत्म हो गया. अभी दूसरा 15 सेकंड. If it goes And below also, this opening price, it will show you red. हाँ, yeah. and also why the tail is not there, because there is no sellers also. I think the push. No. Tail does not have to do it. So actually, if your market opens here, okay, this is now the highest price. Correct. And this is also your last traded price or the closing price. In your candlestick will not have any tail. But if it makes a high price and then it closes here, then you will see a tail. Yeah. That is how. So same thing happens. See, if you want to see an example, see in this candle. See, there is a lower tail, but there is no higher tail. Why? Because Yeah. the highest price and the closing price was the same. So let's say you had sold potatoes at 60 rupees kg, right? So let's say at 3:30, that small boy came to purchase potato at 60 rupees and that he was the last customer and that was the highest price that you had sold potato for the day. So you'll not see the tail. Because Correct. high and close both are the same. Yeah. Clear? Yes. So that is how candlesticks are made. So there is one more type that is called bar chart. Bar chart थोड़ा बहुत boring दिखता है सच बोले तो. So I'll just show you how does it look. बार चार्ट थोड़ा कैंडलस्टिक जैसा ही है, थोड़ा नहीं ऑलमोस्ट. खाली इसके पास बॉडी नहीं है, उतना ही फर्क है. ठीक है. तो ओपनिंग प्राइस जब भी होता है तभी वो लेफ्ट में एक स्टिक क्रिएट करता है और क्लोजिंग प्राइस है तभी वो राइट में एक स्टिक क्रिएट करता है. ये सबसे हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस है और ये सबसे लोएस्ट ट्रेडेड प्राइस है. सो कैंडल में ना पूरा बॉडी है तो देखने में ना विजुअली इट लुक्स वेरी अपीलिंग. बार चार्ट इज अ वेस्टर्न टेक्निक, मतलब यूएस बेस्ड टेक्निक है, तो देखने में इतना अपीलिंग नहीं लगता है. शो यू. ये कैंडलस्टिक चार्ट है. इफ यू गो एंड सी, दिस इज अ बार चार्ट. सो इसको देखने में ना इतना कन्विक्शन नहीं आता. इट्स यू हैव टू सी इट, मतलब एकदम माइन्यूट तरीके से उसको एक एक मूव देखने पड़ता है. दिस बिकम डिफिकल्ट टू सी. एंड अपार्ट फ्रॉम देयर आर मेनी अदर डिफरेंट मेथड्स. देयर इज, सर ने जब भी हाइकेनाशी बोला, सो दिस इज हाउ हाइकेनाशी लुक्स. ठीक है. दिस इज हाउ रेनको लुक्स. रेनको एंड ऑल, दिस आर ऑल जापानीज टेक्निक्स बाय द वे. रेनको कुछ ऐसा दिखता है. ठीक है. दिस चार्ट actually does not consider time value, it only considers the price value. ठीक है. दिस इज कागी. दिस इज अगेन अ जापानीज टेक्निक. ठीक है. इसमें ये टेक्निक को वेस्ट बोलते हैं. ठीक है. तो दे से एक मूवमेंट होता है उसको दे कॉल इट वेस्ट. WAIST, नॉट WAST. ठीक है. तो दैट इज हाउ it is interpreted. And there are other techniques called point and figure. These are really old techniques. Point and figure I mean almost 100 साल 120 साल पुराना रहेगा. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग फ्लोर के जो ट्रेडर्स है उन्होंने ये बनाया है. सो इट मेक्स X when it goes up and it makes 0 when it comes down. उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है. ठीक है. और वो ट्रेडर्स लोगों ने बनाया है इसको. सो देयर आर वेरियस वेज टू सी देम, बट आई थिंक कैंडलस्टिक रिमेन्स वन ऑफ द बेस्ट एज फार एज मेरा जो यूज केस है उसमें. सबको अलग अलग पसंद होंगे, डिफरेंट टाइप, बट कैंडलस्टिक वर्क्स बेस्ट फॉर मी. ठीक है. तो आई होप आपको ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्लॉटिंग, क्लोजिंग, टाइम फ्रेम्स एंड ऑल इज क्लियर सो फार. So let's move forward to the presentation part. Okay. But if I ask you to recommend any of the books to learn candlestick, what it would be? So ideally, Steve Nissen's book of Japanese candlestick techniques is one of the classic book if you want to learn something about candles. Like if you want to learn candlestick patterns and all. Yeah, but open, high, low, close is the basic general thing. So any book would be fine. But Steve Nissen has written one book, which is probably one of the most famous books in the world. Okay. You can use that if you want. एफिशिएंट है या Sorry? कैंडलस्टिक में पैटर्न्स अभी इतने एफिशिएंट है या
सर एफिशिएंट सब है, खाली यूज करने को आना चाहिए, ऐसा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैंडल स्टिक पे यूज बहुत अलग अलग सिंपल टेक्निक्स यूज करते हैं, बट दे नो वेर इट वर्क्स वेल एंड वेर इट डज नॉट वर्क वेल, दैट इज वेर द डिफरेंस इज। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बेस्ट चलेगा और वहां पे नहीं चलेगा। सो इफ यू कैंडलस्टिक हैव आप दैट सिस्टम, हाँ कोर्स सर, में आप पढ़ाने वाले हो ना कैंडलस्टिक पैटर्न? कोर्स पे इंटरमीडिएट है उसमें है सर। मैं मेरे थोड़े रूल्स बताता हूँ, आई डोंट पर्सनली ट्रेड ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बट ओके। आई विल टेल यू सम रूल्स अराउंड इट। वो ओके। इंटरमीडिएट के स्टार्टिंग में ही है। सो हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, वी सॉ टाइम फ्रेम्स। ओके, डेली, वीकली, मंथली, ठीक है, 1 आवर, 15 मिनट्स, जो भी आपको करना है, 10 सेकेंड्स एंड ऑल। तो जो भी आप अलग अलग ये करते हैं ना, उसको टाइम फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ ट्रेंड्स, सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ ट्रेंड्स। मार्केट कैन डू ओनली थ्री थिंग्स, आइदर इट कुड गो अप, दिस इज अप ट्रेंड, आइदर इट कुड गो डाउन, दैट इज डाउन ट्रेंड, और इट कुड डू दिस साइडवेज, कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक है। सो दिस आर द थ्री टाइप ऑफ ट्रेंड्स। नाउ विल टेक यू टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे विल spend more amount of time today here, because support and resistance is the key thing in technical analysis as far as जो यूज मैं करता हूँ उसमें तो बहुत काम में आता है मुझे, ठीक है। तो मेरा बेस जो है ट्रेडिंग का वो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, लेकिन अलग अलग तरीके से आई सी इट। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आई एम श्योर बहुत सारे लोग ने सुना रहेगा। इट इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल कंपोनेंट। एनीबडी हु डज नॉट नो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाय एनी चांस, कभी किसी ने नहीं? ओके, गुड। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी नहीं सुना है? सुना है सर, किया भी। अच्छा, ओके, गुड। But I'm confused, Bhaiya. Like I'm very much clear about support, but resistance I'm very much confused. Okay, it's very simple. Resistance is actually the most simple, because whenever we buy and the market falls down, that becomes the resistance. I'll tell you how. It's a very normal case. So what happens is, let's say for example, has anybody traded on tips? टिप पे कभी किसी ने कहा कि ये ले ले, वो ले ले, एवरीवन। आंख बंद करके ले ले, एवरीवन। ठीक है। फिर लास्ट में क्या होता है, आंख बंद हो जाता है हमेशा के लिए, ठीक है। सो आई, नहीं सर, तो नहीं, जैसे कि जी न्यूज पे उस पे CNBC पे सुबह दिखाते हैं ना, बताते हैं, तो उनको हाँ, पीस पीस करके लैपटॉप पे मैं पहले दो लाइन खींच के सपोर्ट लगा के देखता हूँ कि वो सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। क्या बात है। तो अगर लगता है कि सही बता रहे हैं तो बाय, वरना नहीं। ओके, राइट राइट राइट। सो सो बेसिकली सी सपोर्ट है ना, कैसा कंपोनेंट है, बहुत साइकोलॉजी से बहुत लेना देना है उसे, ठीक है। लेट्स आपको एक टिप मिला है किसी भी स्टॉक का। एक सेकंड, किसी का माइक ऑन है, माइक खाली म्यूट कर, दोनों रिकॉर्डिंग में आपको डिफिकल्ट हो जाएगा समझना, ठीक है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें एक टिप, स्टॉक पे टिप मिला है, 100 रुपए का स्टॉक है, ठीक है। कोई एक कंपनी है, ठीक है, एक फलाना करके कंपनी है। ये स्टॉक जो है ना, ये फलाना स्टॉक, इसमें टिप ऐसा है कि एक कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस अभी 100 रुपए है, वो 800 रुपया रहने वाला है। दैट इज द न्यूज, ठीक है। अभी ये जो 100 रुपए का स्टॉक है ना, आपको न्यूज किधर से मिला? आपका कोई चाचा का, फ्रेंड का, बेटे का, लड़के का, दोस्त का, फ्रेंड का, जीजा का साला कोई है, जीजा से आपको ये टिप मिला है, वाया वाया वाया, ठीक है। और उसने बोला कि ले ले, मुझे एकदम मेरे अंदर के सोर्सेस से मुझे मिला है स्टॉक बाय करने के लिए, ठीक है। अभी नॉर्मली होता क्या है कि कोई भी स्टॉक लेने से पहले टेंशन तो ऑलरेडी आता है, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी इतना माल गले में पड़ा होता है, अभी दूसरा कहाँ से और एक्स्ट्रा बाइंग करे और रिस्क ले, वो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। सो वी नॉर्मली अवॉइड दैट। अभी इसमें न्यूज ऐसा है कि ये जो फलाना कंपनी है ना, इसका कोई प्रॉपर्टी का केस चालू है, जिसमें उसका ये जो है ना, उसका जितना भी मैंने आगे आगे रिलेशन बोला, उसमें से एक आदमी वकील है जो कंपनी में काम करता है। तो उसने ऐसा बोला कि ये लोग का है ना केस हम लोग के फेवर में आने वाला है, और ये जमीन अगर मिल गया ना, तो कंपनी का वैल्यू लेट से 100 करोड़ है, लेकिन जमीन का वैल्यू भी उसके सामने 100 करोड़ है, इक्वल वैल्यू का जमीन का केस जीत गया है, तो ये लोग को बुक्स में आ जाएगा 100 करोड़, तो कंपनी का सीधा नेक्स्ट लेवल प्रॉफिट दिखेगा बुक्स में, ठीक है। इतना बड़ा असेट अंदर आ जाएगा। तो बेस्ड ऑन दैट ये न्यूज आया। तो अब ये स्टॉक अभी हमने तो लिया नहीं है, वी आर वेटिंग के इसमें नहीं लेना है, देखते आगे क्या होता है। एक पॉइंट पे का तो स्टॉक है ना, 100, 101, 99, 100, 101, 99, ऐसे करके फुल टाइम पास करता होता है, ठीक है। तो आप भी आपके काम में रहते हो और सडनली वो
स्टॉक एक दिन 105, 110, 115 मार देता है, 15% ऊपर। अभी सबसे पहले आपके फ्रेंड का फोन आएगा, आपको ये देखा, मैंने बोला था ना, लिया कि नहीं? तो हम लोग ने नॉर्मली लिया नहीं होता है। 115 हो गया, फिर 120 हो गया, फिर 125 हो गया। अभी आपको कैसा फील होगा? अरे यार, एक जो नहीं लिया वही चला। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि अभी ये जब 100 रुपए से 125 रुपए हो गया, तो पूरे सीएनबीसी में, मनी कंट्रोल में, हाईएस्ट गेनर में, हाईएस्ट वॉल्यूम गेनर में, सब स्कैनर में दिखने लगेगा वो। ओके, तो ऑटोमेटिकली अभी आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर इतने एडवांस है ना, इमीडिएटली पता चलता है कि कौन सा स्टॉक भाग रहा है, कौन सा गिर रहा है। तो वॉल्यूम जब भी आता है तो सीएनबीसी में सबसे पहले सुबह सुबह यही दिखाएगा आपको कि फलाना स्टॉक देखे, इसका कुछ लैंड के केस का बात चालू, ऐसा न्यूज अगर आ गया। ओके, तो अभी आपके पास, तो आपने तो नहीं लिया था, आपका कोई रिलेटिव बोलता है कि यार कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, तो आप आपके रिलेटिव को बोलते हो, अरे यार मेरा फ्रेंड का न्यूज है, आपको चाहिए तो ले लो, अभी 130 का भाव चालू है, इसका भाव 800 रुपए तक जाने वाला है। सो आपका रिलेटिव के पास पैसा रहता है, वो 130 रुपए में इसको छाप लेता है। ठीक है, ही बाइज इट। सो नाउ ही हैज बॉट इट, स्टॉक हैज रीच्ड 130। ठीक है, हमें फुल कॉन्फिडेंस है कि 1 to 800 तो जाएगा ही। 800 नहीं गया, 600 गया तो भी पैसा वसूल है। अभी जिसने पहले 80 पे लिया रहेगा, या जिसने की पहले 70 पे लिया रहेगा, 60 पे लिया रहेगा, 90 पे लिया रहेगा, वो आदमी को तो पैसा मिल रहा है ना, आज वो तो प्रॉफिट में है। तो वो भी एक बार सोचेगा ना, अरे यार ये स्टॉक तो चला यार, अपने को अच्छा पैसा मिल रहा है, 50 का रिटर्न, 100% रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, तो चल थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, थोड़ा बहुत है ना प्रॉफिट बुकिंग आता है स्टॉक में, बिकॉज जिन्होंने पहले लिया ना वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग से स्टॉक में थोड़ा सेलिंग आता है, और सेलिंग आते 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 ऑलमोस्ट रीचेस टू द प्राइस रेंज ऑफ 100। ओके, अभी 100 पे आ गया है, आपको फिर से चांस मिला है ये। जो 100 से 130 गया था, जिसका न्यूज 800 का है, वो सेम स्टॉक आपको 100 में मिल रहा है। सो देर आर टू ऑप्शन नाउ। ओके, एक है कि बाई करो, दूसरा है कि सेल करो, 100 रुपए पे बेचो, और तीसरा है कि कुछ भी मत करो। विच ऑप्शन डू यू थिंक इज वायबल और लॉजिकल? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं क्या करना चाहिए, या आप क्या करोगे? फॉलिंग सेल, एज को नहीं पकड़ना चाहिए, जस्ट वेट कि मतलब पब्लिक ओके, क्या देख रही है। तो एक है कि कुछ मत करो, एक है कि 100 पे 130 का 100 पे आया है तो थोड़ा बाई करो, और दूसरा है कि मेरे पास मान लिए लेकिन शॉर्ट करो, और न्यूज है 800 रुपए का, और सीएनबीसी में सब जगह पे इसका न्यूज आया है बाई करने के लिए, उतना पॉजिटिव न्यूज है, और आपको अंदर के सोर्स से पहले ही पता चल गया था कि ये आने वाला है। आपने अगर इसको समझे जो शॉर्ट किया तो आपको भाव नीचे रहेगा तो ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, सो दैट आर टू केस। So is one buy majorly are wait and two are sell। क्या बात है, शॉर्ट Sir, करोगे 100 पे, सपोर्ट पे बेचोगे। ठीक है, सो होता क्या पता है, ये जो 100 का रेंज है ना, नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, 100 के रेंज पे ना नॉर्मली क्या होता है पता है, एक बार है ना, अगर इतना कंफर्म न्यूज किधर से मिला होगा ना, तो पहले तो है ना 100 जहां से वो रैली किया है उसने, 100 का 130 गया, न्यूज अच्छा है, कंपनी केस जीतने वाला है, तो एटलीस्ट कोई आदमी एक बार ये तो सोचेगा मैं 100 पे बेच के क्या करूंगा। समझो अभी यहाँ से रिलायंस अगर 1000 रुपया हो गया तो 1000 पे शॉर्ट करोगे क्या रिलायंस को? यू विल नॉट शॉर्ट, इनफैक्ट विल बाय, बिकॉज भाव नीचे के भाव में 30% नीचे मिल रहा है। ऐसे नॉर्मल यू विल सी बायर्स आर वेरी हैवी एट दैट पॉइंट, एटलीस्ट सेलर्स लोग है ना वो थोड़े कम हो जाते हैं। बेचने वाला बोलेगा अभी 130 पे चांस था, 100 पे क्या बेचू, ये 100 का 110-20 हो गया तो भी निकल जाऊं तो लॉजिकल है। ठीक है, सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज देयर आर मोर नंबर ऑफ बायर्स। सेलर्स जब भी कम होता है तो सेलर क्या बोलेगा, नहीं मैं 105 पे बेच रहा हूँ चाहिए तो ले, मैं 108 पे बेच रहा हूँ चाहिए तो लो, मैं 110 पे बेच रहा हूँ चाहिए तो ले। तो जब भी स्टॉक है ना, कोई एक आदमी जब भी उसको 105 में लेगा ना, तो स्टॉक का भाव 105 होगा,